مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے نام لیے بغیر بلاول بھٹو زرداری کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں آنے والی کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے 15 سال تک حکومت کی، لیکن ان کے پاس بتانے کے لیے 15 منصوبے تک نہیں۔ اپنے انتخابی حلقے NA 119 سنگ پورہ لاہور میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ وہ نواز شریف کے 1500 منصوبے بتا سکتی ہیں۔ پنجاب کے عوام کو نواز شریف پر تنقید برداشت نہیں۔ نون لیگ کے علاوہ ساری جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا۔ دیگر جماعتیں دن رات تنقید کرتی ہیں اور الزامات لگاتی ہیں۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے کیسز بھی روز رکھیں تاکہ جلدی کام مکمل ہو۔ سماعت کے دوران عمران خان کا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ توشہ خانہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کو 13 فروری کی تاریخ دی گئی۔ میں روز سنتا ہوں کہ مجھ پر ایک کے بعد ایک کیس بنایا جا رہا ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا ہے کہ ملک وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام پر چلے گا اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب میں نگراں وزیر اطلاعات نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے۔ میڈیا کو الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق سے ضرور آگاہ ہونا چاہیے۔ الیکشن سے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ 8 فروری کے انتخابات کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کیا سرائیاں کیں۔ منڈی بہاؤدین میں پاکستان مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف سیاسی پاور شو سے خطاب کریں گے۔ پنڈال قائد اعظم گراؤنڈ میں سج چکا ہے۔ جلسہ گاہ میں 10,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ 1400 پولیس اہلکار کو ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا۔ جلسے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد نارووال، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور حافظ آباد سے منڈی بہاؤدین پہنچ گئی۔ لیسکو کی انسداد بجلی چوری مہم 137 روز میں گرفتار ہونے والے ملزمان کی تعداد 17,387 ہو گئی۔ 137 روز سے جاری مہم کے دوران 47,603 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 47,148 کنیکشن کے خلاف FIR کی درخواستیں جمع کروائی گئیں۔ ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ گجرانوالہ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات پر پولنگ جاری۔ 3,717 وکلاء اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ڈسٹرکٹ بار کی 8 نشستوں پر 25 امیدوار مد مقابل ہیں۔ 13 جنوری کو وکلاء کے جھگڑے کے باعث ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات پر پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ سمندری میں تانڈلیاوالا حلقہ PP 103 TLP کے امیدوار چودھری صلابت حسین گجر کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ گڑھ فتح شاہ میں جگہ جگہ پرتپاک اور والہانہ استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں دلبیر حسین کی اس رپورٹ میں۔ سمندری میں حلقہ PP 103 کے امیدوار چودھری صلابت حسین گجر کی انتخابی مہم کے سلسلے میں گڑھ فتح شاہ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ ڈور ٹو ڈور عوامی مہم اور دکانداروں سے ملاقاتیں کی گئیں۔ چودھری صلابت حسین گجر نے کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے علاقے کی حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ 40 سال سے سیاستدانوں نے کچھ نہیں کیا۔ عوام 8 فروری کو کرین پر ٹھپا لگا کر کامیاب کرے۔ یہاں کے لوگ محنت کش ہیں جو محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے ہیں۔ ان کو نوکریاں دیں گے۔ پڑھی لکھی خواتین کو بھی نوکریاں دلوائیں گے۔ 8 فروری کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، دل کھول کر کرین کو کامیاب کریں۔ جھنگ میں یوٹیلٹی اسٹور پر آٹے کی وافر مقدار میں عدم دستیابی سے شہری پریشانی میں مبتلا۔ مخصوص کوٹا ہونے کے باعث شہریوں کو سستے آٹے کے حصول میں مشکلات درپیش، جس کی وجہ سے شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران دیسوالی کی اس رپورٹ میں۔
यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों का रश। शहरियों को सस्ते आटे के हसूल के लिए घंटों खुले आसमान तले इंतजार करना पड़ता है। हुकूमत अवाम की मुश्किलात को कम करने में नाकाम दिखाई दे रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी जरूरियात की अशिया, आटा, घी और चीनी न मिलने से शहरियों को मजबूरी में ये अशिया ओपन मार्केट से खरीदनी पड़ती हैं। उनका कहना है कि पहले ही महंगाई ने इनका जीना दोभर कर दिया है। दुकानों पे दे दो, घर से निकलते किराए भाड़े लगाते हैं, आटा लाइन में लगते हैं, आटा खत्म हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आते हैं, किराया लगा लगा के 4 मरतबा जो आटा लेने आए तो वही 1400 का गट्टू पड़ गया ना हमें तो। सारा दिन लंबी लंबी कतारों में लग के इंतजार करने के बावजूद बारी आने पर शहरियों को कह दिया जाता है कि आटा खत्म हो चुका है, जबकि अपने मंजूर नजर अफराद और होटल मालकान को बादअज़ां ये आटा मुहैया कर दिया जाता है। बेसिकली जो गवर्नमेंट ने सर्विस दी है वो आवाम के लिए दी है, जबकि यहाँ पे तो आटा मिल ही नहीं रहा, वो सारा होटलों में दे रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि वो आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर और बाकी जो पॉइंट्स हैं उन्होंने लगाए हैं वहाँ पे फरहमी की जाए। शहरियों ने हुक्काम से आटे की बढ़ती हुई डिमांड के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा किया है। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, झंग। चूनिया अहाता के चहरी में पेशी पर आने वाले मुल्जिमान पर फायरिंग, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ भाग, पुलिस कांस्टेबल समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जाँ भाग होने वाले मुल्जिमान की शिनाख्त कुदरत अल्लाह के नाम से हुई। दीगर जख्मियों में सनी, हैदर शबीर, अल्लाह वसाया के नाम शामिल हैं। पुलिस ने फायरिंग करने वाले अरशद नामी मुल्जिम को मौका से गिरफ्तार कर लिया। एक मुल्जिम मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। फायरिंग करने वाले मुल्जिम के भाई को चंद माह कबल अल्लाह वसाया ग्रुप ने अगवा करके कत्ल किया था। समुद्री के सियासी हलकों से बड़ी खबर, लीगी उम्मीदवारों ने नाराजगी खत्म करते हुए हाथ मिला लिए। लीगी उम्मीदवार NA98 शहबाज बाबर और उम्मीदवार PP 105 राव काशिफ रहीम के दरमियान सुलह हो गई। मिलकर इलेक्शन कैंपेन करने के ऐलान भी किया। शहबाज बाबर और राव काशिफ के दरमियान तवील अरसे से नाराजगी चल रही थी। दोनों उम्मीदवारों ने मासी की तलखियां बुलाकर हाथ मिलाए और गले भी मिले। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने सुलह करवाने में अहम किरदार अदा किया। हैदराबाद में गैर कानूनी ज़ब्तशुदा सिगरेट आग लगाकर तल्फ कर लिए गए। 20 करोड़ रुपए मालियत के गैर कानूनी सिगरेट गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मुख्तलिफ मार्केट, सिविल सेलर दुकानों से तहवील में लिए। सिगरेट के गैर कानूनी नकलो हरकत और तंबाकू नोशी के सेहत पर मौसर असरात के खिलाफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से शुरू मुहिम जारी है। तहसील तलहार के करीब मेन बदीन हैदराबाद रोड पर खौफनाक हादसा, तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र और मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादम, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर 3 अफराद मौका पर जाँ भाग हो गए, जिसमें नुमान अजीज़, वाहिद और माशूक बीबी शामिल हैं, जिनकी रिहाइश बदीन की बताई जा रही है, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। जाँ भाग और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कनकोट के इलाके गोसपुर इंडस हाईवे के मुकाम पर धुंध के बायस ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार कमलहान जाँ भाग और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वुल्सा के हवाले कर दिया गया। जरवार के नवाही गांव हयात पताफी का रिहायशी 15 साल लड़का मोहम्मद तैगानी सखर के अस्पताल में इंतकाल कर गया। 10वीं जमात का तालिब इल्म कुछ रोज़ कबल रोड हादसे में शदीद जख्मी हो गया था, जो एक हफ्ते से सखर के हिरा अस्पताल में दाखिल था, जिसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। आज सुबह जख्मियों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हल्का PS 25 के नामजद उम्मीदवार अजीज़ ने भी अपने सियासी हल्के में डोर टू डोर कैंपेन का आगाज़ कर दिया। रोहड़ी की आवाम की जानिब से फूल की पत्तियों और सिंध की सकाफत अजरक पहनाकर इस्तकबाल किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हल्का PS 25 के नामजद उम्मीदवार अजीज़ का कहना था कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी का सूरज तहरीक इंसाफ की फतह की खबर लेकर तलू होगा। मुल्क बाशऊर आवाम तहरीक इंसाफ को कामयाब देखना चाहती है और रोहड़ी की आवाम 8 फरवरी को वोट देने जरूर निकले। सजावल में राशिद मलाह के मुबैना कत्ल के खिलाफ मलाह बरादरी के लोगों ने पब्लिक पार्क से एहतजाजी रैली निकाल कर PSP ऑफिस के आगे धरना दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमदाद पठान की इस रिपोर्ट में।
10 दिन पहले सजावल के नवाई गांव यूसुफ मीरबेर से हैदराबाद और सजावल पुलिस ने राशिद मल्ला को गिरफ्तार करके मुबैना कत्ल कर दिया था। इसके खिलाफ मल्ला बरादरी ने पब्लिक पार्क सजावल से एहतजाजी रैली निकाल के SSP ऑफिस के आगे धरना दे दिया है। इस मौके पे हम मुजाहिरीन से बात करेंगे। मेरा यही मुतालबा है, मैं आई हूँ आज SSP ऑफिस के सामने मैं खड़ी हूँ। ये मेरा जो भी भाई बरादर हैं और मेरा शोहर है, सिंध का शोहर है, हमारे साथ हैं, हम सराह पे एहतजाज हैं। मैडम के मैं कह रही हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये जो मसला है राशिद मल्ला का, खुदा आप उस पर नोटिस लो। ये नहीं तो हम सरापा एहतजाज होंगे, सारे दिन सारे रात हम यहीं बैठेंगे। शहीद राशिद मल्ला के कत्ल के खिलाफ है, जिसको पुलिस ने सजावल से गिरफ्तार करके हैदराबाद पुलिस ने रास्ते में उसका मुकाबला दिखा के उसको कत्ल किया है। उसी की वजह से ये एहतजाज है और हम इस एहतजाज में शामिल हैं। हम ये पुलिस सजावल पुलिस से मुतालबा करते हैं कि अगर बाहर की पुलिस आती है यहाँ कोई मुजरिम पकड़ने तो आपके पास एंट्री करवाती है, तो अगर आपके पास उनकी एंट्री है तो हमें वो एंट्री दे दे। अगर एंट्री नहीं है, बगैर एंट्री के उन्होंने ये गिरफ्तारी की है तो हमारी अगवा की FIR दर्ज की। ये है कि हमारे कम्युनिटी के राशिद मल्ला को पुलिस ने कत्ल करके खुदकशी का ड्रामा रचाया, उसने अपने हाथों से अपने आप को मारा है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमारे सजावल के गांव तालो मला से उसको उठाया है और हैदराबाद हटड़ी पुलिस और 3-4 थानों की पुलिस ने मुकाबला दिखा के उसको गोली मार करके हलाक कर दिया है। इसको 10 दिन हो चुके हैं। ये कम्युनिटी, ये बिरादरियाँ, ये सारे सिंध के शोर सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत ने यहाँ SP अमजद शेख, यहाँ SP सजावल कोई तदारक नहीं किया है। हम जानते हैं ये इसके कत्ल में मुलव्वस हैं। हम इसके लिए आज सरापा एहतजाज सजावल SP ऑफिस के आगे धरना देकर बैठे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा कत्ल हुआ है, हमारी FIR दर्ज करो। वो पुलिस वाले जो यहाँ से लेके गए थे, जब तक ये हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा हम यहाँ तक बैठे। नाज़रीन, आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी, जिनका ये कहना है कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा। इमदाद पठान, स्पेशल TV, सजावल।